For the first 3 years, I was in Bombay when I started this company. But when Jio started providing internet access to tier 2 and tier 3 cities in India, we could take our business to Burhanpur. Most of our customers were global. Initially तो बहुत challenges आए, लोगों को लगता था कि scam center चलता है कुछ, और बहुत अजीब अजीब से एलिगेशंस भी आए, मीडिया वालों ने आके भी थोड़ा इरिटेट किया. बट ओवर टाइम व्हेन पीपल स्टार्टेड सीइंग कि नहीं, यहाँ पे तो जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ. तो एक चीज़ हमने इनिशियली की, वुमन स्टाफ को अट्रैक्ट करने के लिए उनकी मदर फादर अंकल आंटी उन लोगों को इनवाइट करते थे, हमारे साथ लंच करिए, डिनर करिए, ताकि उन लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि उनके बच्चे अच्छी जगह पे जा रहे हैं, फैसिलिटीज़ है, वॉशरूम सेपरेट है. हमने इन हाउस इंग्लिश टीचर हायर किया. हम फुल्ली पेड हर साल में उनको कोई भी 2 कॉन्फ्रेंसेज आप चूज़ करो, जाओ अटेंड करो, बैंगलोर में, बॉम्बे में, दिल्ली में, पूरा ऑल एक्सपेंसेस पेड. लर्निंग एंड डेवलपमेंट का मौका मिला तो स्टाफ वाज हैप्पी. वी हैव अ गुड नंबर ऑफ वुमन हु गॉट मैरिड इनटू स्मॉलर सिटीज़. अगर अच्छी जॉब्स छोटे शहरों में आने लगेगी तो मुझे लगता है कि रिवर्स माइग्रेशन और अच्छी तेज़ी से हो सकता है अपने देश में. Hi, welcome to Office Tales and People podcast. Today, in the Changemaker series, I have somebody from not the typical IIT or the Ivy League school, but I have somebody from a tier 3 city who's made it big, and not just himself. He's taking more than 110 people along with him and giving them employment, guidance, and empowering them. I would like to welcome Murtaza from Burhanpur, Madhya Pradesh. And today we're going to talk about entrepreneurship, a lot of challenges, and how he overcome them. Along with that, I would also like to explore how is he building culture in his company. Welcome Murtaza to Office Tales and People podcast. I'm so excited to talk to you. Thank you, Shikha, for having me. So Murtaza, I want to start with understanding कि आपकी ये जो entrepreneurial journey थी वो कैसे शुरू हुई, and did you work before? How was it? What was your education like? I want to understand that first. In 2011, I was very fortunate to get a chance to attend the first Wikimedia conference that was happening in Bombay in 2011, and got the opportunity to listen to Mr. Jimmy Wales, the founder of Wikipedia. And on the stage, he mentioned that Wikipedia is the 4th largest website at that point in time with 50 employees, and that kind of influenced me in understanding the power of the internet, that you could do a lot of great things just on the internet. And I was in awe of the fact that I could also do something that would impact so many people with such a small team, but I did not know how to do it. I did not have any resources, so I could not take any actions. After a couple of months, I attended a conference called Startups that happens every second Saturday of the month in Bombay. There I met a lot of people. That's where I got my first internship in a company called Price Baba. And from there, I learned how things work on the internet, how to run businesses. I was fortunate to be the first employee in Price Baba. So I got to live that journey with the founders for the next 2 years between 2011 and 2013. And that gave me the inspiration and confidence to start my own internet business. Murtaza, you come from बुरहानपुर मध्य प्रदेश. बहुत छोटा शहर है, टियर 3 है. वहाँ पे तो ख़ास अंग्रेज़ी में भी लोग बात नहीं करते होंगे, राइट? तो आपकी जो जर्नी थी कि आप एक कंपनी खोलेंगे, वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, उनको उतना इंटरनेट भी समझना और काम करना, हाउ डिड यू डू दैट? For the first 3 years, I was in Bombay between 2013 and 16 when I started this company. But when Jio started providing internet access to tier 2 and tier 3 cities in India, Burhanpur was one of the first few cities to get Jio pilot program installed. And I thought, Jio is a good internet service, and since Jio is offering these solutions to Burhanpur, we could take our business to Burhanpur, save on rent, save on staff cost, and because most of our customers were global, it did not matter to our customers whether we sit in Burhanpur or Bombay. For them, it was just outsourcing. आपने ये सोचा कि आप कंपनी बनाएंगे, बुरहानपुर से बनाएंगे, लेकिन बुरहानपुर बहुत ही छोटी जगह है. वहाँ पे लोगों को ढूंढना और वो फैसिलिटीज़ क्रिएट करना, वो अपने एम्प्लॉयज़ में वो स्किल होना कि आप एक कंपनी को चला पाएँ. हाउ डिड यू डू दैट इन बुरहानपुर?
सो इनिशियली तो बहुत चैलेंजेस आए, लोगों को लगता था कि स्कैम सेंटर चलता है कुछ, और बहुत अजीब अजीब से एलिगेशंस भी आए, मीडिया वालों ने आके भी थोड़ा इरिटेट किया। बट ओवर टाइम व्हेन पीपल स्टार्टेड सीइंग कि नहीं यहाँ पे तो जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, फिर क्योंकि छोटा शहर है, वर्ड ऑफ माउथ बहुत जल्दी फैलता है। आसपास के जब हमने एम्प्लॉयज़ रखने चालू किए शहर के, और जब सैलरीज बराबर जाने लगी तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो एक चीज़ हमने इनिशियली की वुमेन स्टाफ को अट्रैक्ट करने के लिए, कि हम उनकी फैमिलीज़ के मदर फादर अंकल आंटी उन लोगों को इनवाइट करते थे हर 2-3 महीने के गैप में, कि आप आइए हमारे साथ लंच करिए, डिनर करिए। डिनर अरेंज करते थे ताकि उन लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि उनके बच्चे अच्छे लोग अच्छी जगह पे जा रहे हैं, फैसिलिटीज़ है, वॉशरूम सेपरेट है। क्योंकि ये छोटे शहर के स्पेशली वुमन वर्कफोर्स को बहुत मैटर करता है कि हमारी बच्चियाँ अच्छी जगहों पे जा रही है कि नहीं। तो धीरे धीरे जो ये हमने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया लोगों में, तो अभी हायरिंग के चैलेंजेस नहीं आते हैं, मगर पहले बहुत सारी अलग अलग किस्म की डिफ़िकल्टीज़ फेस हुई, जैसे पावर कट्स है, इंटरनेट इश्यूज़ है। बट अब जियो आ चुका था उस टाइम तक, कि जब मैंने बुरहानपुर शिफ्ट किया तो जियो ने बहुत सपोर्ट किया। मुर्तज़ा, व्हाट आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड इज़ कि आपका जो बिजनेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू कैन टेल ऑल ऑफ अस कि बिजनेस क्या है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ सर्विस दैट योर कंपनी प्रोवाइड्स? सो 2013 में जब स्टार्ट किए थे तब तो वेब माइनिंग कंपनी थे हम, कि हम कस्टम प्रोजेक्ट्स करते थे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए, जिनको LLM मॉडल्स बनाना हो या लार्ज डेटा सेट्स की ज़रूरत हो, उनको हम वो डेटा सेट्स एक्सेस करा के देते थे। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास में अभी ग्लोबल जॉब्स डेटा है, तो रियल टाइम में जितनी भी जॉब्स पोस्टिंग्स हो रही है दुनिया में, हम वो माइन करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं, क्लीन करते हैं, ताकि उस पर एनालिटिक्स हो सके। तो जैसे यूएस की अगर बात करूँ तो यूएस में रफली 10 से 15 मिलियन जॉब्स पोस्ट होते हैं महीने के, और वो जॉब्स बहुत रिक्वायर्ड है जिन लोगों को एनालिटिक्स करना है। अब आपको पता करना है कि कैलिफोर्निया में आईटी इंडस्ट्री बढ़ रही है कि गिर रही है, और गवर्नमेंट ये पता करना चाहती है। जो लार्ज ग्लोबल 4 कंपनीज़ हैं उनको पता करना है उनके क्लाइंट्स के लिए कि टेक्सास में मैन्युफैक्चरिंग क्यों गिर रही है, या एवरेज सैलरीज़ क्या है, या इंडिया में क्या है फॉर एग्जांपल। तो हमारे पास में ऐसे अलग अलग किस्म के हम डेटा सेट्स पहले एज अ सर्विस देते थे, कि ठीक है आप आपकी रिक्वेस्ट दीजिए, हम आपको करके देंगे। और अब हमने खुद के प्रोडक्ट्स ही लॉन्च कर दिए कि हमारे पास में सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो जैसे जॉब्स पोस्टिंग डेटा मैंने एक मेंशन किया, हमारे पास में ग्लोबल फंडिंग डेटा है, तो उसका हम एज इज़ भी सेल करते हैं और पार्ट्स भी सेल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको पता करना है कि मिडिल ईस्ट के अंदर किन कंपनीज़ को कितनी फंडिंग हुई, किस वैल्यूएशन पे हुई, किसने फ़ंड किया, और कौन डायरेक्टर्स है कंपनी में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये इन्फॉर्मेशन जो LPs होते हैं बड़े फंड हाउसेस की उनको चाहिए होती है, जो सेल्स वाले होते हैं उनको चाहिए होती है, और बहुत सारी जगहों पे अलग यूटिलाइज होती है। तो दूसरा एग्जांपल ये है। फिर हमारे पास में AML पेप का डेटा सेट अभी हमने 2021 में 22 में लॉन्च किए। तो अब हम ये डेटा सेट्स को एज अ प्रोडक्ट बेचते हैं। 2013 में व्हेन वी स्टार्टेड वी वर अ सर्विसेज कंपनी, के आप आपकी रिक्वेस्ट दीजिए हम करके देंगे। ये एक काफ़ी टेक्निकल काम भी है। आपके बुरहानपुर में या आसपास की जगहों पे जब आप एम्प्लॉयमेंट करते हैं, तो उनमें ये स्किल सेट डेवलप करने में आपको समय तो लगता होगा, यू विल हैव टू ट्रेन देम, राइट? तो वो चैलेंजिंग रहता है कि आप कर पा रहे हैं? तो एक अच्छी चीज़ ये हुई कि एक तो रिवर्स माइग्रेशन हुआ कोविड के बाद, बहुत सारे लोग बड़े शहर छोड़ के आने लगे, तो हमको टेक्निकल स्टाफ अच्छा मिलने लगा इवन इन बुरहानपुर। फिर हमने एक पायलट ऑफिस नागपुर में खोली 2018 में, व्हेन वी रियलाइज्ड के ज़्यादा टेक्निकल स्टाफ एकदम छोटी जगहों पे ढूंढना थोड़ा सा चैलेंज होता जा रहा था। फिर हमने ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स बहुत अच्छे बनाए। वी वर वेरी लक्की, जो हमने ट्रेनिंग मैनेजर हायर किए वो बहुत ही डेडिकेटेड थे। हमने इन हाउस इंग्लिश टीचर हायर किया, क्योंकि मुझे पता था कि इंग्लिश एवरेज ही होने वाली है अगर कस्टमर से ईमेल पे इंटरेक्ट भी करना है। हालांकि चैट GPT और जेमिनाई के बाद में बहुत आसान हो गया है, उसके बावजूद भी आपको कमांड तो देनी है वो, ताकि आपको आंसर दे सके। तो इन हाउस ट्रेनिंग बहुत स्ट्रांग हो गई हमारी, इंग्लिश से लेके तो टेक्निकल जो हम नॉलेज प्रोवाइड करते हैं स्टाफ को। फिर एक चीज़ जो बहुत अच्छी किया मैंने, कि इंग्लिश तो आप सिखा सकते हो, वो स्पेसिफिक काम सिखा सकते हो, बट आप पर्सपेक्टिव कैसे बिल्ड करोगे स्टाफ का। तो हम फुल्ली पेड हर साल में जो सीनियर एम्प्लॉयज़ है 20-25, उनको कोई भी 2 कॉन्फ्रेंसेस आप चूज़ करो, जाओ अटेंड करो, बैंगलोर में, बॉम्बे में, दिल्ली में आप आओ, पूरा ऑल एक्सपेंसेस पेड, जाना आना और रहना। तो उससे स्टाफ का पर्सपेक्टिव बिल्ड होने लगा। फिर स्टाफ छोड़ के नहीं गया हमको इतने सालों में, क्योंकि फेयर सैलरीज दिए, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का मौका मिला, तो स्टाफ वाज हैप्पी कि यार ठीक है हमको हमारे घर में रह के ये सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है।
तो मुर्तज़ा, आजकल तो ऑल entrepreneurs are looking to expand their companies in metropolitan cities and वो लोग IPO लॉन्च करना चाहते हैं. Everybody wants to make it big in big cities, but you are trying to make it big in really small city. आप entrepreneurs को क्या मैसेज देना चाहेंगे when it comes to expansion and making it big? मैं अपने आप की पर्सपेक्टिव से बोल सकता हूँ कि छोटे शहरों में 2-3 फ़ायदे ये है, जैसे मैं चलाता हूँ 9 साल से, तो कि कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज थोड़ा सा ऑन द लोअर साइड है. हमारे पास में बहुत सारे एग्जांपल्स है जो पूना के अंदर स्टाफ 10-12 LPA छोड़ के हमारा 8 LPA 7 LPA एक्सेप्ट किए, बिकॉज उनका एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाता है. और वहाँ पे टेक्निकल स्टाफ भी मिलने लगा है, स्पेशली women who get married into smaller towns who have studied in बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, पूना. अब वो शादी करके आए हैं तो वो चाहते हैं कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले. छोटे शहरों में ज़्यादा नहीं होती है, तो दे आर लुकिंग फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज़. वर्क फ्रॉम होम टू अ सर्टेन एक्सटेंट हेल्प कर रहा है उसमें, बट जैसे हमने ऑफिस सेटअप किया तो वी हैव अ गुड नंबर ऑफ women who got married into smaller cities and they are managing their families as well as their job together. तो छोटे शहरों में टैलेंट की कमी नहीं है. अब मजबूरी की वजह से उनको बड़े शहरों में जाना पड़ रहा था क्योंकि वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल नहीं थी. और अगर अच्छी जॉब्स छोटे शहरों में आने लगेगी तो मुझे लगता है कि रिवर्स माइग्रेशन और अच्छी तेज़ी से हो सकता है अपने देश में. So, Murtaza, you have told me personally a lot of times that you have a lot of women staff. अब मैं imagine कर रही हूँ कि all these women are also coming from a lot of conservative backgrounds where going out and doing jobs is not really looked upon, by the parents or the society that they live in. आप वो cultural barrier को कैसे मैनेज कर रहे हैं और किस टाइप के कल्चर्स से आपका वुमेन वर्कफोर्स आ रहा है जिनको आप इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं? फ़िलहाल हमारे ऑफिस में 55% वुमेन स्टाफ है बुरहानपुर में. और पहले पहले तो बहुत चैलेंजेस आए क्योंकि उनकी फैमिलीज़ को घबराहट होती थी भेजने में उनके बच्चों को ऑफिस में कि यार हमारा बच्ची 9 घंटे कहाँ जा रहे हैं हमको नहीं पता. बट जब उन्होंने आके देखे, दे रियलाइज्ड कि नहीं, जेन्युइन ऑफिस है, बराबर सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है ऑफिस में. और क्योंकि हमारा ऑफिस बिल्कुल सिटी सेंटर में है तो लोगों के पेरेंट्स को आना या स्टाफ को आना बहुत कंफर्टेबल था. तो ओवर टाइम ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया. इवन मुस्लिम फैमिलीज़ में बोलो जहाँ पे इतना नहीं अलाउ किया जाता है, कि ओवर टाइम ये बैरियर बहुत आसान हो गया हमको क्रॉस करना. पहले पहले बहुत चैलेंजेस आए इस चीज़ को लेके. तो आपके यहाँ पर सभी कल्चर्स के जो वुमेन स्टाफ आ रहा है, उनके जो फैमिलीज़ के लिए आप डिनर्स होस्ट कर रहे हैं या उनको एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, उससे आपको कल्चर में क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ हाउ यू आर बिल्डिंग द कल्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन? आप क्या उसमें कोई डिफरेंस देख रहे हैं? आर यू फीलिंग कि इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बिल्ड हो रहा है? इटरेशन बहुत लो है इसकी वजह से. पहले जैसे स्टाफ जब देखता है कि नहीं मैं सारे लोगों को जानता हूँ, उनकी फैमिलीज एक दूसरे के साथ मिंगल करने लग गई है, तो इटरेशन हमारे ऑफिस में बहुत लो है. फीमेल स्टाफ का इटरेशन आई वुड से इज लेस देन 2% Wow. per annum. Nobody leaves because we provide highest salaries in our town. Nobody can beat our salaries. So ऐसा आई डोंट वांट टू ब्रैग, बट पीपल आर हैप्पी कि हाँ हमारी जॉब लग गई है, हमको ऑनेस्ट सैलरीज मिलेगी, टाइम पे मिलेगी. तो वो उस एंगल से भी खुश है. दूसरा, एक कम्युनिटी बिल्ड हो गया है छोटा सा, सब लोग एक दूसरे को जानने लगे हैं. उनके पेरेंट्स को भी हम बुलाते हैं तो उनके पेरेंट्स एक दूसरे को जानने लगे हैं. तो दे आर हैप्पी कि चलो अच्छी जगह पे जा रहे हैं, घर से नज़दीक है. हमारा बहुत सारा स्टाफ, फीमेल स्टाफ, मेल स्टाफ लंच करने घर चला जाता है क्योंकि छोटा शहर है, सब लोग नज़दीक ही रहते हैं. तो ये सारी फैसिलिटीज़ उनको बड़े शहर में नहीं मिलेगी. अगर सैलरी 30-40% ज़्यादा भी मिल रही है तो उसके चैलेंजेस भी 80-90 या 100% डबल, ऑलमोस्ट डबल हो जा रहे हैं चैलेंजेस. तो उस हिसाब से आई थिंक कल्चर काफ़ी अच्छा बिल्ड हो गया कि ठीक है हमको अब यहीं रहना है, हम खुश है सैलरी से, और हमारा एक छोटा सा ग्रुप बन चुका है. जब आप लर्निंग की बात करते हैं अपने कोई भी एट वर्क प्लेस, आप किस टाइप की लर्निंग बिसाइड्स द टेक्निकल ट्रेनिंग, आप किस टाइप की लर्निंग्स पर ध्यान दे रहे हैं, या फ्यूचर में आप क्या प्लान कर रहे हैं कि योर ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ अपस्किलिंग और लर्निंग प्रोग्राम्स और कल्चर बिल्डिंग प्रोग्राम्स? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? एक तो कम्युनिकेशन आई थिंक थोड़ा सा इम्प्रूव अगर हो जाए टियर 3 सिटीज़ और स्मॉल टाउन्स के बच्चों का,
तो टेक्निकल एजुकेशन होने के बावजूद भी वो पीछे इसके लिए रह जाते हैं कि वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे अपना थॉट। तो हमारे ऑफिस में तो हम लोग बहुत एम्फेसिस डाल रहे हैं इस बात पे कि आप और अभी अगर आपको इंटरनेट पे काम करना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अब आप दूसरी कोई लैंग्वेज, इंटरनेट दूसरी कोई लैंग्वेज पे नहीं चलता है, बहुत कम परसेंटेज इंटरनेट दूसरी लैंग्वेजेस में है। तो इंग्लिश में हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं कि अगर अपने को ग्रो करना है एज एन ऑर्गेनाइजेशन या आपको ग्रो करना है एज एन इंडिविजुअल, तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। नॉट जस्ट इंग्लिश, आप अगर कुछ बात भी कर रहे हो तो वो क्लियर होनी चाहिए, सामने वाले को आसानी से समझ में आनी चाहिए। तो इस पे अभी हमारा काफ़ी फोकस है। सो बेसिकली टियर 3 सिटीज़ में अगर हम बेस सेटअप कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन विल बी वन ऑफ द टॉप लर्निंग थिंग्स दैट यू आर recommending to all the companies that in the future want to set up, right? One thing that worked out for Tamil Nadu, for example, और केरला फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे टीयर थ्री सिटीज़ में कॉल सेंटर बहुत खुले पिछले 15 सालों में, वॉज बिकॉज वहाँ पे इंग्लिश ऑलमोस्ट नेटिव लैंग्वेज थी उनके लिए। तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं आई। मगर आप ये देखोगे मध्य प्रदेश जहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे इंग्लिश को इतना एम्फेसिस नहीं दिया जाता था, तो वहाँ पे टीयर थ्री सिटीज़ में कोई भी कॉल सेंटर इकोनॉमी नहीं है। तमिलनाडु में है, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश का बैरियर नहीं था, तो वो लोग आसानी से आउटसोर्सिंग के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं यूएस के, यूरोप के, वो ले पाए। और क्योंकि वो डॉलर बिल्ड आईएनआर स्पेंट है, उसमें एवरेज सैलरीज बहुत आसानी से अच्छी मिली लोगों को, तो वो ग्रोथ हुई उन स्टेट्स की। Right, right. So great. So Murtaza, entrepreneurship is a very tough journey. और इस जर्नी में अक्सर लोग बहुत जल्दी क्विट कर जाते हैं। क्या आपकी शुरुआत की जर्नी आसान रही है या डिफ़िकल्ट रही है? So I was very lucky and fortunate to meet very good people in Bombay when I spent the first 5 years, 4.5 years here. And those people helped me navigate through a lot of challenges. जैसे financial challenges आते हैं, emotional challenges आते हैं when you run a business. There are some months where you don't make money, and there are sometimes a period of 3-4 months where you don't make any money and you have to pay out of pocket. तो वो कुछ टाइम पे काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई, बट गुड थिंग दैट हैपन टू अस वाज दैट वी वर प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन एंड बूटस्ट्रैप्ड। तो वो जो भी पीरियड भी आया बीच में जहाँ पे लॉसेस भी हुए, तो वो पुराने प्रॉफिट्स ने कवर कर दिए। कनेक्शंस ने बहुत सपोर्ट किया जो बॉम्बे में मैंने 4 साल में बनाए थे। और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक चीज़ अच्छी ये है कि पीपल हेल्प पीपल, and a lot of people guided me towards the right direction, helped me make the right connections. तो उसकी वजह से बहुत सो आसान। इज़ देयर एनी वन पर्सन यू वुड वांट टू कॉल आउट कि इस एक इंडिविजुअल की वजह से मेरे पूरे जर्नी में बहुत इमेंस मदद मिली, तो ऐसा? मेरे जो फर्स्ट बॉस थे अंकुर अग्रवाल प्राइस बाबा के, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, गाइड किया। सो व्हेन आई फर्स्ट गॉट माई इंटर्नशिप एट ओनली गिज़मोस करके कंपनी थी उनकी जब, तो आई टोल्ड हिम कि अंकुर भाई मेरे को तो बिज़नेस करना है मगर मेरे को आता नहीं है। तो उन्होंने बोले काम कर, तू मेरे आके इंटर्नशिप कर ले थोड़ा टाइम, तुझे पहले सीख तो ले बिज़नेस कैसे करेगा इंटरनेट पे। तो ही वॉज काइंड इनफ टू ऑफर मी दैट इंटर्नशिप एंड देन मेड मी द फर्स्ट एम्प्लॉय इन द न्यू स्टार्टअप दैट ही लॉन्च, प्राइस बाबा। तो वो So would you call him your mentor? yeah, of course, yeah. I mean, Yeah. he is still a mentor. We speak every month for 2 hours on the call, discuss के क्या गलत जा रहा है बिजनेस में, क्या सही जा रहा और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कैसे ढूंढ सकते हैं ऐसे मेंटर्स? है। गो टू इवेंट्स लाइक स्टार्टअप सैटरडे फॉर एग्जांपल, और ऐसे बहुत सारे इंडिया में हो रहे हैं। मैं तो स्टार्टअप सैटरडे क्योंकि मैंने वहाँ पे अंकुर से मिला और दूसरे भी लोगों से मिला, बट दीज सॉर्ट ऑफ इवेंट्स आर वेरी यूजफुल, जहाँ पे आप लोगों से पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर पाओ। GSF वॉज वन ऑफ देम, आई मेट रियली गुड पीपल एट GSF। एब्सोल्युटली। और तो ऐसे इवेंट्स में जाने से आपका ना पर्सपेक्टिव भी बिल्ड होता है। जैसे अगर आप टीयर 3 में रह रहे हो, ठीक है, अभी मैं नागपुर बुरहानपुर शफल कर रहा हूँ, बट मैं काफ़ी साल तक आफ्टर स्टार्टिंग द कंपनी ऑल्सो आई वॉज इन बुरहानपुर फॉर कपल ऑफ कंटिन्यूस ईयर्स, राइट। तो मैं कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा था जहाँ पे भी मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी। GSF हो गया, स्टार्टअप सैटरडे हो गया, चेन्नई में एक सैस्टर करके होता है, सास भूमि होता है। तो ये सारे इवेंट्स में यू मीट रियली गुड पीपल एंड they come, the other person also is coming to the event without an intention of making money out of you. They are coming here just to network, to understand, to grow together. तो ये सारे कनेक्शंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। So a lot of times I have heard that networking से कुछ नहीं होता. Just put your head down and keep working. How much do you believe in this? आई मीन 30-70 है, आई थिंक 30% नेटवर्किंग तो होनी चाहिए आपका, अदरवाइज पर्सपेक्टिव कैसे बिल्ड होगा। आपको
चीज़ें समझने के लिए या अच्छे और दूसरे लोगों से कनेक्ट होने के लिए भी आपको कोई ना कहीं से तो वे इन चाहिए, और 70% काम तो करना ही है आपको. ऑफ कोर्स यू हैव टू डू द वर्क. अगर आपका मेंटर भी है तो आपको रास्ता बताएगा, चलना तो आपको ही है. Murtaza, in life when we work on our own, there are a lot of emotional challenges. As an entrepreneur, there are immense amount of emotional challenges. How do you deal with them? Do you think you get a lot of support from your mentor on that as well? Or do you have any other way to cope up with your emotional challenges as an entrepreneur? And I think you're also a individual who's running the show and you don't have a partner. Do you have partner? नहीं, मगर जो जो फर्स्ट फ्यू एम्प्लॉयज़ है दे, आई वाज लकी इनफ टू स्टिल आई एम लकी इनफ टू स्टिल हैव देम विथ मी. सो हुजैफा इज स्टिल विथ मी, ही हैज़ बीन इन द कंपनी फॉर 10 years नाउ. Rahul is with me since the past 5 years. So Rahul quit his job and moved with me. So जो इनिशियल पहले 5-7 लोग हैं उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया. फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा जब मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं नहीं मैं तो बिज़नेस करूँगा. अब हमारे फैमिली में तो कोई बिज़नेस वाला है नहीं, तो उनको ऐसा लगता था बॉम्बे जाके क्या करेंगा. बट व्हेन बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग, फैमिली ऑल्सो सपोर्टेड अ लॉट कि चलो ठीक है भाई तुम करो, हम वील सपोर्ट यू. क्योंकि ये डिसीजन कि भाई बुरहानपुर से बॉम्बे आके 2 साल जॉब करके मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो फैमिली वालों ने कभी रोका नहीं उसमें, वो काफ़ी हेल्प हुआ. Great. So, Murtaza, I'm so happy that you came here, spoke to us about entrepreneurship and so many other things. I hope you enjoyed the conversation on Office Tales and People podcast. Thank you for having me. I appreciate you calling me here. Thank you. Thank you for watching Office Tales and People podcast. In the Changemaker series, today we had Murtaza Amin from Burhanpur, Madhya Pradesh. And it's a story for every youngster who's willing and wanting to be an entrepreneur from a tier 2, tier 3 city. Please do share this episode with everyone you can. And thank you for watching Office Tales and People podcast.